دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اپنے یسوع ناصری پر آنکھیں لگائیں تاکہ ہم جیے تو اس کے لیے اور اگر مرے تو اس کے لیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہو تو تم زندگی کا تاج حاصل کرو گے۔ میں اتفاق سے کہ ہم سب دعا کریں گے اور آج ہم کھڑے ہو کر نہیں بلکہ ہم گھٹنوں پر ہو کر ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویا، ساری بات کو اللہ کے حضور کریں گے اور ہم دعا کرنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تاکہ وہ تجھے ایک باقی گزشتہ نہ ہو، تجھے چھوڑے نہ بلکہ تیرے ساتھ اور زیادہ ان کی زندگی اور زیادہ تیرا ڈر خوف پیدا تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی یہ بات قائم رہ سکے کہ جان دینے تک وفادار ہوں۔ یہ سنا تم تمام لوگوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو، ان کی حفاظت کر، ان کی نگہبانی کر، اپنے خادمتی کو اس ناصر ہم اپنے چرچ کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تمام کلیسیا کو، تمام سیکیورٹی، چرچ کے اندر، چرچ کے باہر کے ایریا کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اس ناصر حتیٰ کہ دہشت گردی، حتیٰ کہ ابلیس کے منصوبوں سے، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑوں سے، حتیٰ کہ ابلیس کی چالوں سے بچا کے محفوظ رکھنا، اپنے لوگوں کی حفاظت کرے تاکہ لوگ سلامتی سے پہنچے اور جب اپنے گھروں میں لوٹے تو تیرے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر جائیں۔ اس ناصر اپنے لوگوں کی حفاظت کرے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرے۔
से मांगे में पा लेते नाम से मांगे तलावत कलाम पाक खुदा की जिंदा कलाम से हम रुखसार के साथ मिलकर पढ़ेंगे। ए खुदा अपनी शक्ल के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसर के मुताबिक मेरी कायम करा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपने खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फकर तेरे को गुलाम किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में राज डाले और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख मैं बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख तू बातिल की सच्चाई करता है और बातिल ही में मुझे भलाई सिखाएगा। जुल्फे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। मुझे खुशी और खुशी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असल और मुस्तकिल रूह डाल। मुझे अपने खसूस से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे जुदा ना कर। खुदा के पाक का पड़ा और सुना चला हम सब तेरे भाई से बरकत। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम देखो दाऊदी में हम हाथ कहेंगे, ये हवा तो है तख्त नशीन, कोई तेरे जैसा नहीं।
चमड़े दी
आमीन। एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहती थी और
وہ میں ضرور کروں گی کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھیں گے جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں چرچ کے. ان کی زندگیوں میں دعا کے وسیلے سے بہت کام ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں ابلیس ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھر سے چرچ تک نہیں پہنچ سکتے، اور ان کی زندگیوں میں معجزات بھی خداوند کر رہا ہے اور وہ اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر سے نکل کر چرچ تک نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو ابلیس ایسا دباتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے کام کر لیں ہم، یہ مطلب کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بہانہ یہ مان لے کہ ایسا میں بنا کے رکھتے ہیں کہ جس کو لے کے وہ جو ہے وہ خدا کے گھر میں جو ہے وہ آنے سے جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو خاص طور پہ خداوند کے حضور میں رکھیں گے، تاکہ اگر خداوند ان کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہے اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر خداوند ان کو توفیق دے تاکہ وہ خدا کے گھر تک پہنچیں اور خدا کے گھر کو اہمیت دیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہم دعا کریں گے جو عبادت کے ایک دن پہلے یا اسی دن ہی عبادت کی جو ہے ٹائمنگ میں اپنے گھروں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکلتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں کے گھر میں یا جدھر بھی ہے وہ لے کے جاتے ہیں. خدا ان کی زندگیوں میں بھی جو ہے اپنا ڈر اور خوف پیدا کرے تاکہ وہ یہ چیز جان سکے کہ جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو جس کو وہ چھوڑ کر آگے بھاگتے ہیں وہی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جس خدا کو وہ چھوڑ کر خدا کے گھر کو چھوڑ کر وہ آگے جاتے ہیں، خدا ان کی زندگیوں میں کام کرے اور ان کی عقل اور دانائی دے تاکہ وہ ایسے کام نہ کریں، تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں پہلا درجہ خدا کو دیں اور اس کے بعد جو ہے باقی کام کریں. پرستش میں ہم آگے بڑھیں گے. میری درخواست ہے ان دونوں لوگوں کے لیے دعا کی جائے. اس کے ساتھ جب ہم گجرا والا کے لیے اور جنا والا کے لیے اور فیصل آباد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ایسے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جائے تاکہ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ان کی زندگیوں میں خدا کام کرے اور خدا ان کو وہ رکاوٹیں جو ابلیس کی طرف سے آتی ہیں اور جو ان کو خدا کے گھر تک پہنچنے سے روکتی ہیں خدا ان کو ختم کرے. آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے میرے رب بچائیں. زبور نمبر 18 30. آپ اپنا ہاتھ بتا کے میں رب بچائے گا. آپ اپنا ہاتھ بتا کے میں رب بچائے گا. اور ڈونگے پانی بھیجو میں بیچ لگائے گا. آپ اپنا ہاتھ بتا کے میں رب بچائے گا. Thank you.
मेरे भारी दोती दुश्मन जिन्ना बैर बनाया है उन्ना कोल मेरे रब ने मैंने छुड़ा। बेशक वो लोग जो दुश्मन बने बैठे हैं बेशक वो अपने लोगों को छुड़ा है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज़बूर नंबर 37 ज़मीन दे वारिसूं दी पुकार के हवाले पर जिन्ना उते लानत है वो कटे जाए। ज़मीन दे वारिस मोहम्मद के मुबारक हवाले, ज़मीन दे वारिस मोहम्मद के मुबारक हवाले, पर जिन्ना उते लानत है वो कटे जाएंगे, पर जिन्ना उते लानत है वो कटे जाएंगे।
زمین وارث ہومن کی مبارک کی ہوا دی پر جنہ اتے لعنت ہے او کٹے جا ہاللویا ہم سب نے سر اٹھ کے جام عمر پہ اور کوشش کریں زیادہ تر دعائیں کریں اور ہم دعا کریں گے ساتھیوں کے ساتھ ملیں قدوس میں باپ خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے سارا دن کا بغیر حفاظت کی اور اس وقت یہ موقع دیا کہ تیرے قدموں میں جھکیں تیرے نام کو دھن باد کہیں تیرے نام کی عزت و جلال دیں تیرے نام کی ستائش کریں میں باپ خدا تو ہی تعریف و تمجید کے لائق خدا ہے تو الفا ہے تو میدا ہے تو ابتدا ہے تو انتہا ہے میں باپ خدا یا خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ دن دیا اور یہ شام دی کہ ہم تیرے قدموں میں جھک جائیں تیرے نام کو دھن باد کہیں میں باپ خدا اس میٹنگ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں شروع سے لے کر آخر تک تو ہماری ہادیوں مددگار رہنا میں باپ خدا جتنے گیتوں زبور گائے جائیں وہ تیرے حضور میں باخور کے امانت پہنچے میں باپ خدا اور اے خدا بقیہ حصے کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اس میں بھی تو ہمارے ساتھ رہنا میں باپ خدا گانے والوں کے ساتھ ہونا بجانے والوں کے ساتھ ہونا میں باپ خدا جیسے تیرے پاک کلام میں لکھا ہے جہاں ساز و آواز مل جاتے ہیں وہاں میرا ابر چھا جاتا ہے بے شک خدا یہاں پہ ساز و آواز ملے تیرا ابر چھائے تیرا پاک روح یہاں پہ کثرت سے کام کرے اور تیرے معجزات ظہور میں باپ خدا اپنی بیٹی کو اپنے جلال کے لیے اٹھا کھڑا کرنا میں باپ خدا اس کے گلے کا ذمہ لے لینا میں باپ خدا اے خدا اس کے گیت گانے کے وسیلہ سے چوہے ٹوٹے بندر ٹوٹے جھگڑے آزاد ہو تیرے ہی نام کی ستائش ملے تیرے ہی نام کو جلال ملے میں باپ خدا اے خدا اپنے خادم کو اپنے پاک کلام کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کر دے میں باپ خدا اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے کلبے تک چنا میں باپ خدا اے خدا آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں زندہ بے تصیر نہ لوٹے آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لائیں اور تیرے ہی نام کی عزت و جلال دے تیرے ہی نام کی ستائش کرے میں باپ خدا اے خدا اس جگہوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں میں باپ خدا اے خدا جس جگہوں پہ آگ لگائے گی میرے باپ خدا ان لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں میں باپ خدا ان کو ایمان میں اور مضبوط کرنا ان کے ساتھ ہونا میں باپ خدا تو ان دکھوں مصیبتوں کو سہے اور تیرے ہی نام کو عزت و جلال دے اے خدا ان چرچز کو اے خدا جن کو جلایا جا رہا ہے میں باپ خدا اے خدا ان کے خادمین کو اے خدا اور حوصلہ دینا کہ وہ تیرے نام کا پرچار کرے اور تیرے ہی نام کو عزت و جلال دے میں باپ خدا اور وہ جانے کو ایک زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں میں باپ خدا اے خدا تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں میں باپ خدا اے خدا میں اس وقت کی التجا کو سننا اور قبول کرنا تیرے اپنے اطلاعی نام سے مانگ لیتی ہوں اور پا لیتی ہوں پرستش میں آگے بڑھیں گے اور ہمارے درمیان میں سسٹر سوبل موجود ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے ہم وہ گیت سنیں گے ان سے ہمیں ہاللویا میری طرف سے سب کو سلام میں گیت گاؤں گی یہوہ لشکر آدھا خدا ہاللویا یہوہ 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 یہوہ
सानू जिंदगी देव दिखाती ओ अपनी सिया लड़ाए सानू जिंदगी देव दिखाती ओ अपनी सिया लड़ाए तेरी सूरत विच जाती यसु झूली चढ़ाए बेटे दी सूरत विच जाती यसु झूली चढ़ाए यसु झूली चढ़ाए तेरा खूनी कहा तेरा खूनी कहा तेरा खूनी कहा तेरा खूनी कहा यसु राधा खुदा कशिश में आज मिलेंगे और हम गीत नंबर 224 घर घर में अंजील सुनाएंगे कर यीशु का नाम बताएंगे गीत नंबर 224 घर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे घर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे ऐसा देखेंगे लेकर चलाना राहों में नजारा समाना ऐसा देखेंगे लेकर चलाना राहों में नजारा अंजीर को फैलाना ही काम हमारा है। हालेलुया। छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के चारों पहर छेड़ेंगे वही
नगमे ये सोगे जानो कहे तकलीफों का क्या कहना तकलीफों का क्या कहना मरना भी गवारा अंजील को फैलाना ये काम हमारा अंजील को फैलाना ये काम हमारा मुर्दे का दरवाजे ये नाम प्यारा मुर्दे का दरवाजे ये नाम प्यारा मुकद्दस के सामने दुआ हालेलुया कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप मैं दिल की था बुराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती बाप सारा दिन तेरे मरने का बानी हिफाजत की तेरा पाक नाम से एक लम्हा भी जुदा नहीं हुआ बाप इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र बजा लाती बाप आज की शिफाई इबादत को तेरे हैंड ओवर करती बाप जब तक हम गाते बजाते बोलते सुनते रहे तेरा पाक नाम से एक लम्हा भी जुदा ना हो जो कुछ गाए बजाए सुने तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो बाप हम अपने आप को पीछे और तुझे आगे
आगे करते हैं, हम बढ़ते जाए, तुम्हारी जिंदगियों में बढ़ता जाए और तेरा बेटे यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता जाए बाप। बजाने वाले हाथों में तेरा जोर मांग लेती हूँ, गाने वाले गलों की तरह मस्सा मांग लेती हूँ बाप। तूने अपने बच्चों को जब करना सिखाया, इस तरह तेरे नाम में गाते और तेरे नाम में बचाते जाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते जाए बाप। मैं तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप, खास तौर पर तेरे आगे इंतजार करती हूँ फैसलाबाद और चढ़ा वालों के लिए बाप, जब जिनके घर तूने चला दिए बाप, और जिन लोगों ने इनके घर चलाए हैं बाप, चर्चेस चला दिए बाप, उन पर तेरा कभी हाथ चाहती है बाप, उनको लिए तेरी अक्ल और दनाई चाहती है बाप। हमारी जंग तू खुद लड़ने वाला है, और जब तू हमारी जंग लड़ता है तो हम उसमें फतहाब होते हैं, तो हमें फतेहाबी से नवाजता है बाप। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र गुजार करती हूँ बाप। तमाम मसीह पाकिस्तान के मसीहियों के लिए दुआ मांगती हूँ बाप, उनको अपने कभी हाथों में रखना, अपने कभी हाथों में रखना, क्योंकि तेरा हाथ छुटाने की कि उन सब की तरफ बढ़ ना सके और तेरा कान बानी नहीं कि मेरी तजाओं को सुन ना सके बाप। यकीनन सुनने वाला जिंदा खुदा है, मेरा ईमान भरोसा तवक्कुल तुझे जिंदा खुदा पर है। खास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ बाप, बहन भाई के लिए दुआ मांगती हूँ बाप, जो चर्चेस नहीं आती है बाप, उनको अपने प्यार की डोर से खींच के लेके आना, ताकि तेरे घर में और तेरी अपनी बरकतों को रिसीव करने वाले बन सके बाप, और तेरी मोहब्बत को जान सके कि तूने इससे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्शने से दिलेर ना किया बाप। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र गुजार करती हूँ बाप, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ बाप। जितने बहन भाई तेरे हुजूर आ चुके हैं बाप, उनको अपने आसमान की नीचे खोल कर बरकत देना, कभी किसी चीज की कमी ना आ सके बाप, क्योंकि बरकत ना तो शुमार से आती है, ना तो मगरिब से आती है, बल्कि आसमान से आती है। तो अपने आसमान की नीचे खोल कर इनको बरकत दे देना, कभी किसी चीज की कमी ना आ सके बाप। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ बाप, तुम्हें छोटे से इंतजार को सुनना, कबूल करना, तेरे जिंदा जलाली बाबरकत नाम से मांग लेती हूँ। की तवज्जी को जीचू ले आए खरीद मैनू मुल मेरा तारिया सत्य में चाह करे फता दिया ले आई खरीद मैनू मुल मेरा तारिया सदके में जावा तेरे पता सदके में जाऊं तेरे पता दिया लाड़िया ले आए खरीद में लो मुल मेरा तारिया ले आए खरीद में लो मुल मेरा तारिया सदके में जावा तेरे पता दिया लाड़िया सदके में जावा तेरे पता दिया लाड़िया। हाँ
जाने का ज़माना ना है सो। जाने क्या ज़माना कितना है सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के प्रेम में। जाने का ज़माना 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 है सुहाना, ज़माना ज़माना जाने का ज़माना ज़माना ज़माना
Nathan. Asinagami na kabirami, asinagami na kabirami, at chuki ke kare dua, at chuki ke kare dua, Yahweh teri jang ladega, tu chup rahi to chup rahi. Bye.
आज चले निशान जीता यीशु रहता है हमेशा साडे नाल आज चले निशान जीता यीशु रहता है हमेशा साडे नाल ना कोई दुख ना कोई ना ऐसा बात ना कोई दुख ना कोई ना हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे और खुदा के हाथों और बेहतरीन के साथ मिलकर दुआ रुखसार के साथ मिलकर दुआ करेंगे और हम सारे खुदा के तुझे खुदा है खुदा के तेरा अपराध मुझे छाया हुआ है खुदा तेरे शुक्र की साथ यानी खुदा कि जब हम तुझे सभी प्रकार के सांस से लगा कर खुदा ऐसा पाप की तरह तेरे हस्ती में छुटे हैं कि कोई मसा रखा परिणाम में पिछला तुमको इस्तेमाल करा है तेरे शुक्र की साथ खुदा ऐसा हम उस तमाम लोगों को हम पे हाथ खुदा जिस वक्त कम में है खुदा ऐसा बात जिनकी गिलाव के खुदा ऐसा खुदा चला दिया जिस लोगों की डोरों को चला दिया खुदा के पास खुदा की बड़ी कमाई कर और खुदा को मजबूत रखना खुदा वो खुदा में आगे बढ़ते रहे तेरे वफादार लोगों को तेरे हाथ में तुम्हारी बड़ी कमाई करना तुम हमें इस लायक बनाना हम पर मुश्किल आए हम तुझ में डटे हम तुझ में बने रहे ऐसा रिवाज हमारे बेटी को तेरे हाथ इसके हाथ में उसके जुबान में उसके होठों पे उसके जुबान को ऐसा रिवाज जब खड़े होकर तेरे नाम की मुनादी करते तेरा पाप उसको आकर पीछे से घेरे रहे तेरा पाप उसको की तकदीर दे ताकि सब कुछ के तेरे पाप में के मुताबिक ऐसा रिवाज जिससे तमाम लोगों को हाथ देते हैं बल्कि बड़ी हिफाजत मेरा और ऐसे काम करने वालों पर शर्मिंदा करना अगर तुम्हारा सीधा आसमानी खुदा है तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है ऐसा रिवाज जब आसमान को खोलकर हर लोगों के लिए क्षमा ऐसा रिवाज तुम्हारा रहकर हमारे सिफरों में पहाड़ है हमारे छूने की जगह जांच है कि आज में हमारा मिला सीधा जो हमारे दुआओं पर कान काटा खुदा हमारे लोग ऐसा रिवाज वो हमें बड़ी अक्ल से मांगू कर ताकि बड़ी अक्ल से बड़ी ताकत से हमें रहनुमाई कर सके ऐसा रिवाज हम लोगों को हाथ देते हैं जिस संस्थान के साथ बड़ी हिफाजत के साथ आज का पागला खानों के हाई से बरकत हो इन बच्चों के लिए आए खड़े बज परवीन का इस्तेमाल करेंगे। बज परवीन आज इस्लाम की मीठी आवाज़ लेके हमारे दुनिया में आएंगे। Praise the Lord.
आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए सब बैठे हैं। वह सारे नीचे बैठे हैं। मैंने आज सुबह जब व्हाट्सएप देखा तो सर ने वहाँ पे एक वीडियो सेंड की थी, और जब हम देखते हैं कि हमारे मसीही लोगों पर बहुत सा तशद्दुद होना शुरू हो गया है और बिला वजह ही उन पर इल्ज़ाम लगाकर खुदावंद के घरों को जलाया जाता है और खुदावंद के कलाम की बेहुरमती करके और खुदावंद के खात्मों को भी इसलिए और ख्वार किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मार पीट करके वो घर से बाहर निकाल रहे हैं। पता नहीं, हम देख नहीं सकते, और मुझसे तो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता कि जब हम परेशान होते हैं, हमारे बहन भाई जब परेशान हैं तो हमारी रूह को भी सुकून जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि ये मुसीबतों का शुरू है और ये मुसीबतें अब आना शुरू हो चुकी हैं कि जब हम खुदावंद में रहेंगे तो वो मुसीबतें हम पर भी आ सकती हैं। तो हमें तहे दिल से बड़े अफसोस के साथ उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनको बड़ा सब्र और इत्मीनान दे, और खुदावंद से हमेशा हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हम जब तक जिंदा रहें, अगर हम उन मुसीबतों को झेलते हुए हम जिंदा रहें तो तू हमें सब्र और इत्मीनान और इतनी क़ुव्वत हमें अता करना कि हम खुदावंद इब्लीस के शिकंजे में आकर हम अपने आप को उसके हाथों में ना दें, बल्कि हम हमेशा खुदावंद से ही पनाह मांगे जो हमें अपनी पनाह में रखना जानता है और वो अपने लोगों की फिक्र करता है। हमारा जो आज का टॉपिक है, सर ने इस पे बड़े अच्छे मैसेज दिए हैं और मैंने भी इसको चाहा कि मैं भी इसको बयान कर सकूं, लेकिन मैं सीखती हूँ अपने सर से कि मेरा सर क्या बोलता है और हमें क्या सीखना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को किस तरह रखना चाहिए, कि खुदावंद का कलाम हम अपने खुदावंद यीशु मसीह में कैसे पवित्र होकर फल ला सकते हैं। और वो फल, अगर हमारा खुदावंद यीशु मसीह अच्छा अंगूरों का दरख्त है, वो आपको पता है कि अंगूर का दरख्त नहीं होता, वो एक बेल होती है, और उस बेल में अगर हम देखें ना तो उस बेल में बहुत सारे बल होते हैं, वो कभी भी सीधी नहीं होती। मैंने जब एक दिन इसको स्टडी किया तो मैंने देखा कि खुदावंद तूने तो हमें निजात दी, तो हम ये नहीं कह सकते खुदावंद यीशु के तेरे अंदर बहुत सारे बल हैं, लेकिन उस बेल को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे बल हैं, और जो कोई उसमें पवित्र होता है और उसको भी उन बलों के बीच में से गुजरना पड़ता है, तब ही वो जाकर फल लाता है। और मैंने बड़ी देर से सर के पास मेरा इतना आना नहीं होता, मैं सिर्फ चर्च के वक्त ही मैं आती हूँ और चर्च करके मैं फ़ौरन चली जाती हूँ। मेरे सर के साथ कोई भी मीटिंग नहीं होती और ना ही मैं इतना टाइम सर को दे पाती हूँ कि मैं उनसे सीखूँ, लिहाजा मैं उनके मैसेज सुनती हूँ और मैं उनको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनती हूँ। और मेरी एक खिदमत खुदावंद ने मुझे दी है जो बहुत टफ है, लेकिन मैं वो खिदमत नहीं करती। आज मैं आपको सिखाऊं कि हम इस बेल के बलों में से कैसे गुजरेंगे, तो मैं भी नहीं उस बेल के बलों में से गुजर रही, क्योंकि मेरे घर के बहुत सारे इंतज़ाम हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं, और मैं अपने घर के इंतज़ामों को देखकर मैं वो अपनी खिदमत को पीछे छोड़ देती हूँ। और मैं इस चीज़ को बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, और मैं खुद पर ही अफसोस करती हूँ कि खुदावंद, अगर तूने मुझे अपने इन बलों में शामिल करना था तो मेरा जीवन साथी और मेरा घराना इस तरह का होता कि मैं मुकम्मल तौर पर तेरी वो खिदमत कर सकती जो तूने मुझे दी थी। लेकिन मैं इस बात को समझती हूँ कि शायद वह अंगूर की
नारियल के बल हैं जिनके बीच में से मुझे गुजर कर वो फल लाना है। हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 43 आयत में पढ़ूंगी आपके सामने। 43 और 44 आयत में बयान करूंगी और आज हम इसमें से सीखेंगे कि अच्छा दरख्त कौन है और बुरा दरख्त कौन है और उसमें अच्छा फल क्या है और बुरा फल क्या है। मैं अपने खुदावंद से चाहूंगी कि मेरा खुदावंद मुझे इसको बयान करना सिखा दे कि मैं इसको बयान कर सकूं। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 43 और 44 वर्स में पढ़ूंगी। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बड़ी से अंगूर। सो खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मैंने आज जब रात को रोज़ा रखा तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने ये अपने सर से सीखा कि जब हम बीमार भी होते हैं तो जब हम रोज़े में ठहरते हैं तो खुदावंद हमें तंदुरुस्ती देता है, क्योंकि वो वफादारी हमारी खुदावंद के साथ होती है और हमें खुदावंद ही जानता है कि हम रोज़ादार हैं। मैं जॉब भी करती हूँ, मैं कॉलेज में जाती हूँ, लेकिन मेरे लिए जितनी भी सख्त ड्यूटी हो मुझे वो करनी है और मैंने कभी भी उनको नहीं बताया कि मेरा रोज़ा है, क्योंकि हम सारा दिन मुस्लिम लोगों में रहते हैं। वो हम उनमें काम करते हैं, लेकिन हमारा कलाम जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम रोज़ा रख कर हर इंसान को बताएं कि मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। हमें जितना भी मुश्किल काम करना पड़े हम करते हैं, क्योंकि मेरा खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत देता है। हम इसमें से सीखेंगे क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। मैं इस बात को कहना चाहूँगी और लेकिन मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये सच्चाई है और इसको तो सच्चाई के साथ बयान कर दे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मैं इस चीज़ को समझूंगी कि मेरे घर में एक दरख्त है, वो मेरा बाप है, वो मेरा बड़ा है, वो मेरी माँ है और हम उसके बच्चे हैं। और मेरा बाप ही जब मुझसे तलख बात करेगा तो उसके बच्चे भी उससे तलख बात ही करेंगे, क्योंकि जैसा हम अपने बाप से सीखते हैं वो हमारे अंदर भी कन्वर्ट होता है और हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। हम उनको कोई डायरी नहीं, कोई कॉपी पेंसिल दे के लिख के नहीं बताते कि तुमने फलाने के साथ ये बात करनी है, फलाने को तुमने ये सिखाना है, फलाने के लिए तुमने ये अल्फाज बोलने हैं। ये हम कभी भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते, बल्कि वो हमें देख कर सीखते हैं। तो इसमें क्या है कि वो मेरा बाप जो है वो दरख्त है और मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको देखकर मैं उसकी डाली हूँ तो वो फल भी मुझ में वैसा ही लगेगा। वो अगर वो गाली देगा तो मेरा बेटा भी गाली देगा, अगर मेरी माँ गाली देगी तो मैं भी यकीनन गाली ही दूंगी। तो मैं कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं बोलूँगी। अगर मेरी माँ अच्छा नहीं सोचेगी तो मैं भी अच्छा नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैं कहूँगी कि मेरी माँ के लिए अगर वो इंसान बुरा कर सकता है तो वो मेरे लिए भी बुरा ही करेगा। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अगर दुनिया ने उसके साथ बुरा किया तो उसने हमारे लिए बुरा नहीं किया। वो सलीब पर चढ़ा और उसने अपनी जान देकर उसने हमें निजात दी। तो आज हमें अच्छे दरख्त बनने की
ज़रूरत है कि हम खुदावंद में रहकर, अगर हम अपने माँ बाप को पीछे छोड़कर, उनको छोड़कर हम अपने खुदावंद के पीछे चलेंगे, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह में पवित्र हो जाएंगे, हम उस बेल की डाली बन जाएंगे, तो हम उन बलों में से गुजरकर वो फल लाएंगे जिसे खुदावंद कहता है कि तुम सब मेरी डालियां हो। अगर वो हमसे प्यार करता है तो वो हमें जरूर छांटेगा, अगर हमें वो समझ देता है तो वो हमें समझाएगा, वो हमारी नाकस समझ को समझदारी में तब्दील कर देगा। इसको जब मैं दोपहर को स्टडी कर रही थी तो मैंने फल के टॉपिक पे मैंने मैसेज, इसमें बहुत सारा कलाम है, हम इसको बयान करते रहें तो ये ख़त्म ही नहीं हो सकता कि ये फल के 126 जो इसमें कलाम में इसकी वर्सेस हैं, इसके बाब हैं, हम इसको पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक इसको स्टडी करें तो 126 बाब जो हैं वो हमें इसमें फल के मुताबिक जो वो हमें मिलते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में पवित्र हो जाएं और अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं जो हमारे खुदावंद को पसंद है। मैं हर रोज़ सुबह उठती और हर रोज़ सुबह मैं दुआ करती हूँ, और मैं दुआ करने से पहले मैं कोई चीज़ जो है ना वो मैं अपने हल्क से नीचे नहीं गुजार सकती, क्योंकि मेरे से वो जाती नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बदन को पानी की ज़रूरत है, इसको खुराक की ज़रूरत है, तो मेरी रूह को भी इस कलाम की ज़रूरत है। हमारी रूह को भी भूखा और प्यासा नहीं होना चाहिए। पिछले संडे में, शायद बुध वाले दिन, ये सर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, इन्होंने मैसेज दिया कि खुदावंद मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुमक कहाँ से आएगी, मेरी कुमक मेरे खुदावंद से है। और हमारी कुमक और हमारा फल तब ही हमें मिलता है जब हम अच्छा बोलते हैं। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि जब हम अच्छा बोलेंगे तो ये फल जो है हमारी कलीसिया में, हमारे अंदर उनको नज़र आएंगे कि ये बंदा खुदामत में है, ये सीखता है और ये हमें भी सिखा सकता है। अगर मैं आपको सिखाऊं तो मैं कुछ ना सीखूं तो मेरा आप तो मुझसे सुनकर या मुझे देखकर अपने आप को बदलेंगे, लेकिन खुदावंद आपको बरकत देगा। लेकिन जब मैंने अपने आप को नहीं बदला तो मैं बरकत कहाँ से पाऊंगी? मैं बरकत नहीं पा सकती। आप मुझसे सुन के इस चीज़ को सीखेंगे। मैंने पिछले दिनों में मुझे कैथोलिक के चर्च में मुझे थोड़ा सा कलाम में शिरकत करने का एक मौका मिला। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी खादम को या किसी बेटी को या किसी को मैं बुरा भला कह सकूँ। मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ से। मुझे बहुत डर लगता है कि मैं उनको बुरा भला कहूँ, लेकिन खुदावंद का जो पलूस रसूल खुदावंद का खादम है, उसका मंसू है, वो कहता है कि तुम रूहों को परखो। हमें रूहों को परखने की ज़रूरत है। आज हम कलाम में से सीख रहे हैं कि अच्छा दरख्त बुरा फल कभी नहीं ला सकता। अगर हमारा खुदावंद, हमारा रूहानी बाप हमें अच्छी तरबियत करता है तो हम भी बुरा फल नहीं ला सकते। हमारे अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि हम किसी की बात को बर्दाश्त कर सकें। अगर हम कलाम को सुनकर भी उस पर अमल नहीं करते तो इसमें हमारे खादम जो हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे और हमें भी उतनी ही मार पिटेगी जितना कि हम खुदावंद के कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते। इससे बेहतर है कि हम खुदा के कलाम को ना सुनें, हम गुनहगार ना ठहरे। तब हम कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, ना हमने इस कलाम को सुना है और ना हमें पता है। लेकिन खुदावंद जो हमें सिखाता है कि तुम मुझ में रहकर अच्छे दरख्त बनो ताकि तुम अच्छा फल ला सको। और जब मुझे उधर कलाम की खिदमत मिली और मैंने कलाम को बयान किया, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने भी मेरे खुदावंद के कलाम को सुना
और वो फिर भी अभी इसरार करते हैं तो वो बाजी को बुलाओ, हम उससे कलाम सुनेंगे। उन्होंने हमारे साथ अच्छी बातें शेयर की और उन बच्चों ने उस कलाम को सीखा। मैं बड़ी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ उन बहनों के लिए भी जो हर रोज़। लेकिन जब मैं आपको तरबियत दूंगी, मैं आपको सिखाऊंगी कि खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, उसका पाक रूह हमारे दरमियान काम कर रहा है। जब हम इसकी तालीम नहीं पाते तो हम खुदा के रूह को बिल्कुल भी नहीं जान सकते। और मैं आपके लिए दुआ कर दूं कि खुदावंद आपको पाक रूह देने वाला है, खुदावंद आपको पाक रूह देने वाला है, पाक रूह आप में से होकर बोलने वाला है। तो जब आप लोगों ने इसकी तरबियत नहीं पाई होगी तो आपको इस चीज़ का पता भी नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ को पीछे खड़ी होके मैं खुदावंद के मसा को बहुत ज़्यादा मैं अपने अंदर ले रही होती हूँ कि खुदावंद प्रस्तिश के वसीला से बहुत सारा यहाँ पर काम करता है। और मैं दुआ करती हूँ कि हमारी ये छोटी सी जो कलीसिया है ये भी उसी मसा को, उसी खुदावंद के रूह को, उस खुदावंद पर अपना ध्यान लगाते हुए और खुदावंद की उस तरह प्रस्तिश करके देखे जिस तरह खुदावंद का मसा यहाँ पर मौजूद होता है। तो हम उसके दरख्त के अच्छे फल जो हैं वो बन सकते हैं। जब हम खुदावंद में होते हैं तो हम खुदावंद में रहकर हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर लोग हम पर क्या करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा कलाम सुनते ने, बड़ियां दुआवां करते ने, बड़े रोजे रखते ने ते आप की करदा इत्थे ते गालियां कट दिया सी ते इत्थे ते भैन चुगलियां करती पई सी ते इत्थे करती पई सी। मुझे ये काम करने से तो बड़ा डर लगता है और ना मैं किसी की चुगली भी नहीं करती और ना किसी के लिए बुरा भला कहती हूँ, क्योंकि हमारा हर रोज़ का काम है। हम सब मिलकर बैठते भी हैं, मिल के बातें भी करते हैं, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जितने लोग हम काम करते हैं हम एक दूसरे के साथ कलाम की बातें करें ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो आगे आगे फैल सके। तो फिर हम क्या बनते हैं, हम अच्छे दरख्त बनकर तो अच्छा फल लाते हैं और वो कलाम की बातों को सुनकर बहुत सारे लोग बरकत पाते हैं और अपने आप को तब्दील करने की भी कुदरत, खुदावंद उनको तब्दील करने की कुदरत रखता है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमें उसमें प्रविष्ट होने के लिए अपने आप को अच्छा बनाना है ताकि हम खुदावंद के कलाम में से सीखते रहें और वो खुदावंद का कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर लिखता जाए और हम खुदावंद में घटते जाओ, खुदावंद हमें बढ़े ताकि हम बहुत सारे लोगों को उसके पास लाने का वसीला बन सके, क्योंकि खुदावंद हमें अच्छे दरख्त बनाना चाहता है। और आज हम अच्छे दरख्त अपनी अच्छी बातों से बन सकते हैं। अच्छी सोबत जो है वो फूलों की तरह खुशबू को छोड़ जाती है और वो फूल जब खराब होते हैं ना तो उसमें से गंदी स्मेल भी बड़ी आती है। ये भी मेरी बात सहन में रखना। खुदावंद की बातों को अपने अंदर रख के दुनिया की बातों को हम अपने अंदर नहीं रख सकते और ना दुनिया की गंदगी को हम अपने अंदर भर सकते हैं। खुदावंद का कलाम हमें अच्छा दरख्त बनने के लिए सिखाता है कि तुम अच्छे दरख्त बनो और अपने होंठों से अच्छी बातें कहो ताकि तुम अगर उस जगह पर, उस मुकाम पर किसी वक्त में तुम खड़े ना हो तो लोग तुम लोगों की एक मिसाल दें कि वो बंदा हमारे साथ इस तरह कलाम को पेश करता था, इस तरह कलाम की बातें करता था, इस तरह वो खादमों की रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह वो खादमों को अपने घर बुलाते हैं या उनका एहतराम करते हैं। ये खुदावंद ही हमें सिखाता है। और खुदावंद कहता है कि तुम मेरे बेटे के सिवा तुम बाप के पास नहीं जा सकते। जब हम उसमें प्रविष्ट होते हैं तो हम खुदावंद में रहते हैं तो हम अच्छे दरख्त बनेंगे। और मैं चाहूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह अंगूरों की बेल है और हमें उसके जितने बल है ना, जितने बलों में से खुदावंद यीशु मसीह गुजरा है ना, तो आज हम अपने आप को उसके जो दरमियान के बीच में जो बल होते हैं 3 से 4 होते हैं, क्योंकि हमारे घर में एक बेल थी उसमें इतने सारे बल थे और हम लोग कहते हैं कि अंगूर के बेल के नीचे सांप रहता है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे घर थी ना उसके नीचे वाकई भी सांप था। तो मैं इस चीज़ को तस्लीम करती हूँ कि जब हम खुदावंद में रहते हैं तो हमारे चुगिर्द भी इब्लीस हमेशा रहता है
किसी न किसी जगह से वो हमें खींचना चाहता है, किसी न किसी बात से वो हमें खुदावंद से पीछे हटाना चाहता है कि मैं इनके लिए ये काम कर दूं, मैं इनकी ज़िंदगी में ऐसा बुरा काम कर दूं, इनकी बुरी सोच कर दूं, इनके अंदर झूठ की रूह को डाल दूं, इनके मुंह से झूठ बनवाऊं ताकि ये खुदावंद से पीछे हट सके। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें इन तमाम बातों से जो है वो पीछे ही रहने की और हटने की हमें हमेशा सिखाता है कि हम इसमें से सीखते रहें और खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में घर करता रहे और हम अच्छे दरख्त बने। जब हम अच्छे दरख्त बनेंगे तो हमारे ऊपर अच्छा फल लगेगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें देखेंगे भी, अच्छी नज़र से भी कई लोग देखेंगे कि इसके ऊपर, इस दरख्त के ऊपर अच्छा फल लगा है, और कोई हमें अकेला समझकर वो हमें नोचेगा भी, हमें मारेगा भी। लेकिन जब हम खुदावंद में मरते हैं तो हम उसमें हमेशा जिंदा रहते हैं। जब हम उसमें मरकर जिंदा हो जाते हैं, जब हम एक बीज को बोते हैं तो वो अकेला ही होता है, और वो जब ज़मीन में बोया जाता है तो वो अपने आप को उस ज़मीन में मार देता है। फिर उसमें से एक कोंपल निकलती है, और फिर जब वो किसान जो है उसकी हिफाजत करता है तो फिर वो एक दरख्त बनता है। और हमें अपने हर फैमिली में से एक फैमिली ऐसी होती है जो खुदावंद के साथ रहती है, और बाकी सब लोग खुदा के साथ चल तो रहे होते हैं, लेकिन वो बीच में से उस इंसान को कुछ नहीं समझते जो सच्चाई के साथ खुदावंद के साथ चलता है। हमेशा उस दरख्त की मुखालफत होती है, हमेशा उस दरख्त को बुरी नज़र से देखा जाता है कि इसके अंदर गुरूर है, इसके अंदर घमंड है, ये हमारे साथ बात नहीं करता, ये हमारे बीच में आकर नहीं बैठता। और ये जो बातें हैं ये भी हमें एक दूसरे से जुदा कर देती हैं, और हमें खुदावंद के कलाम को अपने अंदर रखते हुए यही सीखना चाहिए कि ये कलाम को हम उन तक पहुंचा सकें, कि खुदावंद का कलाम जब उन तक पहुंचे तो खुदावंद का कलाम उनकी ज़िंदगी में भी इसी तरह काम करे जिस तरह वो हमें सिखाता है। आज की हमारे इस कलाम में से हमारे लिए हासिल कलाम ये था कि हम इस कलाम को सुनकर उस बेल की तरह बने, जिस बेल में अगर हमने उस बेल में जाकर अगर हमने फल लाना है तो हमें उस बेल के बलों में से गुजरना पड़ेगा, वरना हम लोग खिदमत बिल्कुल नहीं कर सकते। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको ओपन कर देते हैं। अपने शुरू सिखाएंगे, दुआ करेंगे, दुआ में कोई भी नहीं कर सकता। देखिए वेद के साथ मिलकर दुआ करें। इश्तिहाद में सबसे पहले बातें हैं। संडे की इबादत सुन 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक होती है। पहला और तीसरा इतवार पाकशाह की इबादत होती है। पहला और तीसरा इतवार पाकशाह की इबादत होती है। ये संडे जो आएगा पाकशाह की इबादत होगी। जो लोग पाकशाह में शहीद होते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए ताकि खुदा के बदन और रूह को हासिल कर सकें। बुध की इबादत शाम 7 से लेके 9 बजे तक होती है और ये हमारी शफाइया इबादत है। सो इन तमाम बातों के लिए आपने दुआ करनी है। महाना बातें जो हैं पीर की इबादत इस बार भाई सूरता के घर में, लेकिन वो कैंसिल करवा रहे हैं, लेकिन ये फिर पक्की कैंसिल कर दी जाएगी।
क्योंकि ये दूसरा मंथ है, तो इसके बाद इनको इबादत नहीं दी जाएगी। मंगल की इबादत भाई ये भी अभी चौथा मंगल है, ये हमारे पास खाली होता है। जुमेरात की इबादत जुमेरात भी हमारे पास खाली होगी। जुमा भाई अनवर के घर चूंकि दुगैज में इबादत होगी। हफ्ते की इबादत हडियारा गांव और ब्राह्मणाबाद में होगी, लेकिन अगर रास्ता हडियारे का ठीक ना हुआ तो हडियारा और ब्राह्मणाबाद की इबादत भी इस बार कैंसिल कर दी जाएगी। इस तरह हमारे पास सब जुमेरात खाली है, फिर उसके बाद मंगल भी खाली होगा, पीर भी खाली होगा। सो अगले महीने से जो बातें एडजस्ट की जाएंगी उनमें आपको जो नए लोग हैं उनको ये बातें दे दी जाएंगी। आइए, मैं चाहता हूँ आज सुबह से दिल बड़ा उदास है। सुबह जब हम उठे तो सुबह मुझे किसी काम की वजह से मुझे थाने जाना पड़ा। तो जब मैं वहाँ पे जिस बंदे को मैं मिलना था तो वो बात कर रहा था फोन पे कि कॉल करें और जल्दी से तमाम नफरी को वापस बुलवाएं, क्योंकि फैसलाबाद में एक वाकया हुआ है। तो सारे थानों में अलर्ट कर दिया गया है कि तमाम क्रिश्चियन आबादियों में वॉच किया जाए, तमाम चर्चिज को वॉच किया जाए। और ये है उनकी वॉचिंग कि आज जड़ावाला में 21 चर्च जला दिए, 21 चर्च, बहुत बड़ी तादाद है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब प्रोग्राम देख रहा था, खुदावंद भाई सलीम इकबाल को सेव रखे, हिम्मत दे, ताकत दे, जो इतने खतरनाक हालात में भी अभी भी वो वहाँ पे हैं और वो चोरी लाइव चला रहे हैं। थोड़ी देर के लिए चोरी, और अभी थोड़ी देर पहले वो बता रहे थे कि मुझे भी लोगों ने मारा है, कि आप क्यों वीडियो बना रहे हो, मुझे भी थप्पड़ मारे गए, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। अभी वो खेतों में खड़े होकर, कुछ पास्टर साहबान हैं उनके साथ, और वो खेतों में खड़े होकर वीडियो बना के बता रहे थे कि 21 चर्च जल गए हैं और उन चर्चेस के नाम, उन पास्टरों के नाम, बहुत सारी बातियाँ जला दी गई हैं। अफसोस की बात है, आज 16 तारीख है, 14 को हमने पहले एक महीना पहले जब 14 ये अगस्त का महीना शुरू हुआ तो हमने कहा था कि इस बार हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, कि हम खुश नहीं हैं। लेकिन भीड़भाड़ की इंतहा है, माजरत के साथ पास्टर भी भीड़ है हमारे, जिन्होंने अभी तक मैं कई लोगों के स्टेटस देख रहा हूँ, अभी तक 14 अगस्त के स्टेटस अपने चर्चिज के लगाए हैं, चर्चिज में प्रोग्राम करवाए गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पास्टर को जो ऐसे काम करते हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी आज़ादी है, क्या हम आज़ाद हैं? ये हमारी आज़ादी है कि आज 21 चर्च, थोड़े चर्च नहीं है, 21 चर्च जला दिए गए हैं, पास्टरों के घर जला दिए गए, लोगों के घर जला दिए गए। अभी एक बेटी की मैं वीडियो देख रहा, रो रही थी, कह रही मेरा माँ बाप नहीं है और बड़ी मुश्किल से हमने जहेज इकट्ठा किया था और वो सारा जहेज भी जला गया। लेकिन मौजें लगी उन पास्टरों की जो डॉलर कमाते हैं। अब डॉलरों पे डॉलर आएंगे लेकिन करना कुछ नहीं हमने। मुझे सुबह किसी ने फोन किया माजरत के साथ, क्या पास्टर अनवर को कहें कि अब निकले बाहर और कहे कि हम आज़ाद हैं। जो बाहर जाके लोगों को कहते हैं कि हमें तो बड़ी आज़ादी है पाकिस्तान में, हमारा बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं जो हमें दबाने पे तुले हुए। क्या हम करें? क्या हम आज़ाद हैं? अगर आज़ाद हैं तो ये हमारी आज़ादी है कि आज 21 चर्च जलाए गए हैं, बहुत सारी वादियाँ जला दी गई हैं और लोग खेतों में छुपे बैठे हुए। ये है हमारी आज़ादी और हमने बड़ी खुशी से आज़ादी मनाई है। हमारी आज़ादी ये है, इसलिए हमें आज अपनी कौम के लिए दुख से निडाल है। हम आए में थोड़ा सा वाला देखेंगे, हमें ऐसे काम करने की, हमें ऐसे दुखी होने की जरूरत है। आस्तर की किताब 4 बाब उसकी पहली आयत को जब पढ़ते लिखा, जब मर्दी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुर दर्द आवाज से चलाने लगा। क्या आज
हम ऐसा काम कर सकते हैं, हम उन लोगों के लिए अपने दिल में दर्द रखें, हमको अपने कामों में मगन हैं, दूर ना जाए। आज हमने एक स्टेटस बनाया, एक फ्लैग बनाया, जैसे हमने कोरोना में बनाया था, और उसमें हमने लिखा कि खुदावंद हमारे लोगों पर रहम कर। उसको सेंड किया गया और अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने उसको अपनी उस पर लगाया, डीपी पे। रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी डीपी को चेंज कर दें, अपनी तस्वीर उतार दें, झंडों वाली तस्वीरें लगाई, 14 अगस्त की तस्वीरें लगाई, अपनी शक्लें लगाई। ये नहीं हम कर सकते कि हम कुछ देर के लिए उनके काम में शरीक हो सके। मर्द की शहर में जाके रोता है, पुरदर्द आवाज से रोता है, आज हमारा रोना कहाँ है? क्या हम ऐसे अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं? हमारा दर्द ये है कि वो जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हम अपने कामों में मसरूफ। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा सानिया हो गया। अभी तक लोग मुझे फोन कर पूछे, भाई साहब एक हमला याद है, क्या हुआ है, क्या है? हम सिर्फ टिकटॉक बना सकते हैं, टिकटॉक लगा सकते हैं, टिकटॉक देख सकते हैं, लेकिन जहां ऐसा काम होगा उसके लिए हमारे अंदर कोई खौफ नहीं, हम कुछ नहीं करते, हमारे अंदर दर्द है ही नहीं। अगर दर्द होता तो आज हम सारे गम से निडाल हैं और हम बार बार दुआ करेंगे खुदावंद उन लोगों पर रहम कर। पादी साहब बैठे हैं, संडे को ये आए थे और इन्होंने एक बात कही थी कि अब वो काम होने वाला है, हो चुका। बार बार हम कहते हैं, बार बार पास्टर साहबान आपको बताते हैं कि ये काम होने हैं और ये होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज चर्च की तादाद देखते हैं, बहुत सारे लोग डर के भी नहीं आए होंगे, डर के भी नहीं आए होंगे कि तो वाकई चर्च से इतना अटैक हो जाए, बोलता है उधर उधर होने थे ना होने, लेकिन हम खुदा के साथ जुड़े हुए। खुदा के कलाम में लिखा, कौन तुम्हें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो कोई आपको उससे जुदा नहीं कर सकता। आए हदी के लिए गीत गाएंगे। लड़ता लड़ता चंग आ गया, लड़ता लड़ता जंगिया लड़ता, मेरी हर जंग ये सुहाग लड़ता, लड़ता लड़ता जंगिया लड़ता, मेरी हर जंग ये सुहाग लड़ता। मैं आगे से तुम्हारा तो नहीं डरता, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलता। मैं आगे से तुम्हारा तो नहीं डरता, यीशु मेरे आगे आगे चलता। मेरी हर जगह पे तू लड़ता, लड़ता लड़ता जगह लड़ता, मेरी हर जगह तू लड़ता, लड़ता लड़ता जगह लड़ता, मेरी हर जगह तू लड़ता। पानी के बदले से चले आ तुझे गुलाम रो, पानी के बदले से चले आ तुझे
मेरे हाथों पे हाथ ये तो करना मेरे आगे चलना चलना मेरे हाथों पे हाथ ये तो करना मेरे आगे चलना चलना मैं जवान दिया को जो सोनी करना मैं जवान दिया को जो सोनी करना मेरी हर जगह आपने तो लड़ना 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 मेरी हर जगह तू आप लड़ना 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 मेरी हर जगह तू आप लड़ना 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 मेरी हर जगह तू आप लड़ना मेरी हर जगह तू आप लड़ना मेरी हर जगह तू आप लड़ना। तमाम हथियार चाप के लिए हम दुआ करेंगे और भाई इशफाक भाई मंसूर थे वो दुआ में लगेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिर्फ कुछ मैं खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। खुदूस खुदूस खुदा का जब के बाद खुदा सलाम की शहादत करें। उनकी रोटी की ग्रह से पहले खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी इस्तेमाल के लिए जो हमारी जिंदगी में बख्शी पहले खुदा आपके घर में आ सके आपके जमा आपके नाम को इज्जत और जलाल दे पहले खुदा तू जलाल से भरा हुआ खुदा ने पहले खुदा आसमान तेरा तख्त है जमीन तेरे पांव की चौकी पहले खुदा जिस पर बैठते हैं उसको खुदा करते हैं बेशक तेरे खुदा सिद्ध और तरीफ के लायक है हम उस ताज के लायक है मेरे खुदा खुदा दुआ करते हैं आज जितने सर झुके हैं मेरा खुदा उनको एक एक नाम करम बरकत देना उनके घरानों खानदानों के साथ होना मेरा खुदा खुदा अपने काम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना मेरा खुदा खुदा मेरा खुदा खुदा दुआ करते हैं आज के हदीये नजराने के लिए मेरा खुदा आपके लोगों ने आपके दिए में से दिया मेरा खुदा आप इन्हें मल्टीप्लाई करके वापस लौटाना और मेरा खुदा उनके घरों पर अपनी बरकत को अंडेरना मेरा खुदा ताकि इसी तरह से मेरा खुदा ये सारे लोग आपसे वस्त्र रहे मेरा खुदा दुआ करते हैं मेरा खुदा आज उन लोगों के लिए जो मेरा खुदा इस दुख की घड़ी में मेरा खुदा परेशान है तो मेरा खुदा उनकी तरफ अपना कभी कदर जलाली हाथ बढ़ाना मेरा खुदा उनके घरानों का सेव करना मेरा खुदा उन लोगों के लिए मेरा खुदा उनको जंग लड़ना मेरा खुदा क्योंकि मेरा खुदा तो हमारी ढाल है हमारी सिपर है मेरा खुदा तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है क्योंकि तू कल आज और अब तक यकसा खुदा है वो आज भी मौजूद करने की कुदरत रखता है उन लोगों की तरफ मेरा खुदा उनको अपनी नजर को कर मेरा खुदा और उनकी हिफाजत और निगहबानी करना मेरा खुदा इसी तरह से मेरा खुदा अपने लोगों को संभालना और हिफाजत निगहबानी करना मेरा खुदा हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ मांगा जो कुछ पा लिया जो कुछ मांगना भूल गए अपने लाइफ खजाने से बख्श दीजिएगा मानते हैं आपके इकलौते बेटे अपने मेरा खुदा यीशु मसीह के आमीन। आए बीमारों के लिए दुआ करेंगे खासकर दुआ करेंगे जड़ा वाले में जो वाक़या हुआ उन तमाम पास्टर साहबान को उनकी फैमिलियों को तमाम उन लोगों को जिनके घर जला दिए गए हैं उन सब के लिए दुआ करेंगे पास्टर जमील और साथ हैं उनके साथ जिसके हम दुआ करेंगे और कलमा प्रकाश आए महबाब की सारा कुछ आए से पहले कलमा बंद करें अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बंद कीजिएगा। हम ये तो आंसू कर सकते हैं खुदा तसल्ली में इसको दे कि बाइबल का खुदा सच्चा खुदा है और जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो होना शुरू हो गया। पिछले संडे मैंने कहा था कि मेरे कहने से नहीं हुआ कि बाइबल का जो खुदा है कलाम सच्चा है। उन खानदानों के पास अपने जवान बेटियों को जो वाकई की खेतों में छुपे हुए हैं और ये सारे जो हालात हैं उनके लिए खुदा के हज़ूर में तसल्ली को